हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं आपके क्लास 8 रीडर बुक की। बिकॉज वी फोकस प्रैक्टिस बुक एंड लिटरेचर बुक मस्ट, बट you have the reader book. Actually, reader book is meant for reading what the name suggests, and this reader book actually gives you extra knowledge to write articles what are asked in your examination. So this is your reader book front page. I have taken it from content so that the whole content I can give you the concept on upon. First one we will read in this video, changing times. And in changing times, what is the concept of changing time? That you know that how the time is changing. Our forefathers, then our grandfather, and then our fathers, and then we have been looking different changing in our day-to-day life, as if you are attending online classes now. It were not available in your grandfather's day or your forefathers day. So really time is changing. Food habit, okay, wearing style habit, and all the style of talking, dialogue delivery, and settings, and many things are being changed. So there is a gap. You feel there is a gap between the generations. So we will all read about this in changing times. Then you will read about compassionate soul, and you can see, if you are Davian, then you can recognize this figure. And point number 2, compassionate soul, who is he? Can you guess? Yes, have you seen the portrait somewhere in your school? Yes, you are right, Mahatma Hansraj. Then we will read about Mahatma Hansraj and other great persons. Compassionate means friend, kind souls. So like Mahatma Hansraj, we will read another compassionate soul here. Okay, and then in enterprise, enterprise means work, business. So in enterprise, we will read about the works and then its importance. Then we will go to nature in 4 number, and how nature is important to us and how we should go in the lap of nature. We will read according to picture. You see that the child is loving his tree that he and his grandfather showed the seed, and now the seed has grown into plant, and then very soon it will be a tree. So love of nature is shown here, importance of nature is shown here in 4 number, and in 4 number chapter, how nature is our teacher is shown here. And then we will go to games and sports. You know that how important games and sports are for our life. Vivekananda has said that school is as equal as playground in necessity for a person's growth. And then we will go to 6 number, tolerance is the need of the hour. आप किसी बस में, ट्रेन में जा रहे हो और आपके साथ कोई सटता है, तो आपको लगता है कि ये व्यक्ति बेकार मेरे पास सट रहा है, मेरे पास आ रहा है, या आप किसी भी जनरेशन के लोगों को आप नहीं झेल सकते, आप बुजुर्गों के साथ नहीं बैठ सकते। तो इन सारे कंसेप्ट के बारे में हम टॉलरेंस में बात करेंगे, हाउ वी शुड बी टॉलरेंट। एक चीज़ तो हम कर सकते हैं दोस्तों कि हम सबसे प्रेम नहीं कर सकते हैं, लेकिन सबको टॉलरेट तो कर ही सकते हैं। इसमें जाति संप्रदाय की भी बातें आ सकती है, समाज में विभिन्न तरह के लोगों की बात आ सकती है, खाने पीने की हैबिट्स की बातें आ सकती है। तो हमें ये तो संभव है कि हम मम्मी पापा और दूसरे सगे संबंधियों के अलावा सबसे प्रेम नहीं कर सकते, लेकिन हम सबको टॉलरेट तो कर ही सकते हैं, और जो साधु स्वभाव के होते हैं वो सबसे प्रेम भी करते हैं। तो चलिए फिर से चलें चैप्टर 1 पे, जिसको हम विस्तार से पढ़ेंगे, वो है चेंजिंग टाइम्स। तो मैं आपको लेके चलता हूँ चेंजिंग टाइम्स पे। नीचे ये रहा चेंजिंग टाइम्स फ्रेंड्स। Of course, this is in class 8 reader book. I have told earlier, read the following complaints parents usually have against their teenage children. टीन एज क्या होता है? 13 to 19, टीन जिसमें लगा होता है वो एज टीन एज होता है, 13 years to 19 years. कॉमन कंप्लेंट्स ऑफ पेरेंट्स टुडे। तो देखें कि कॉमन कंप्लेंट्स क्या हैं पेरेंट्स के। डोंट हेल्प इन हाउस होल्ड चोर्स। क्या करते हैं आज के बच्चे की घर के कामकाज, घर में जो कामकाज होता है उस पर वो फोकस नहीं करते, उस पर ध्यान नहीं देते, मिसेस बजाज कह रही हैं। फिर मिसेस भल्ला कह रही हैं, देखो ये मैं आपको इंडिकेट करता हूँ मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ, मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ। मिसेस भल्ला कहती है ड्रेस डिस्टेस्टफुली एंड हैव अगली हेयर स्टाइल्स। एक तो वो भद्दे भद्दे ड्रेस पहनते हैं, इनका कहना है, और हेयर स्टाइल्स तो बस पूछो ही मत। तो आप भी देख रहे हो कि आजकल के जो हेयर स्टाइल हम पसंद कर रहे हैं फ्रेंड्स, वो कैसे हैं। और फिर चलें मिसेस शर्मा का क्या थॉट है। शी इज सेइंग दैट दे हैव क्यूयर फ्रेंड्स। क्यूयर वर्ड का मतलब होता है विचित्र फ्रेंड। तो उनके दोस्त भी, आजकल जो बच्चे हैं उनके दोस्त भी विचित्र हैं। और आगे एक पेरेंट कह रहे हैं कि डोंट लिसन टू आवर एडवाइस, वो हमारे एडवाइस को नहीं सुनते हैं। तो आप देखते हैं, देखे होंगे या फिर खुद भी फील किए होंगे कि आपके पेरेंट्स क्या आपके बारे में ऐसी सोच रखते हैं। अगर हाँ, तो उसे बदलने की ज़रूरत है और उसे अच्छे करने की ज़रूरत है। इसी तरह बहुत सारे लोगों का यहाँ पे सोच दिया हुआ है आज के जनरेशन के बारे में। मिस्टर गुप्ता कहते हैं कि वॉच टू मच टीवी, बहुत टीवी देखता है या देखती है, उनके बच्चे देखते हैं।
और मिसेज नायर कहते हैं आर ऑलवेज आर्गुइंग, हमेशा बहस करते हैं किसी बात पे। और ये आप फील भी किए होंगे कि जब मैं टॉलरेंस की बात कर रहा था, तो बच्चे हों या बूढ़े आजकल टॉलरेट करने के लिए कोई तैयार नहीं है, तुरंत गुस्सा आता है हम लोगों को। तो ये भी ट्रेड्स लक्षण हमें देखने को मिलते हैं फ्रेंड्स। चलो अब आगे देखते हैं। ये तो हो गया थॉट कि हमारे जनरेशन के बारे में क्या सोच रखा जा रहा है, ठीक है, क्या सोचते हैं हमारे पेरेंट्स। फिर पॉइंट नंबर 2 में है कि हैव यू एवर हर्ड योर पेरेंट्स मेक दिस कंप्लेंट्स, क्या आपके मम्मी पापा ऐसे कंप्लेंट्स किए हैं आपको? इफ़ यस विच वन, तो कैसे कंप्लेन आपके आते हैं घर में? टिक द वन यू हैव हर्ड। एंड देन पॉइंट नंबर 3, वर्क विथ योर पार्टनर एंड डिस्कस द कंप्लेंट्स टीनेजर्स यूजुअली मेक अबाउट द मेंबर्स ऑफ देयर फैमिली। तो आप स्कूल तो जा नहीं रहे हैं कि पार्टनर से डिस्कस करेंगे, तो आप घर में जो सदस्य उससे डिस्कस करेंगे। माइकल मेरे से डिस्कस करेंगे कॉल करके, और अपने फ्रेंड्स से भी डिस्कस कर सकते हैं ऑनलाइन। मेक ए लिस्ट ऑफ द कॉमन वंस, तो जो बहुत कॉमन हो, जब 4 लोगों से बात करेंगे जो आपको बहुत कॉमन लगेगा, उसमें से आप उसको नोट डाउन करेंगे। तो पॉइंट नंबर 1 में देखिए बहुत कॉमन बातें लिखी हुई है कि point number 1, always, yes, where am I reading? I should indicate also so that you should not discourage. I am reading here, are always telling me what to do. आज के बच्चे ये नहीं चाहते कि मम्मी पापा हर समय बताते रहें कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, है कि नहीं? और फिर दूसरे नंबर पॉइंट में क्या है? दूसरे नंबर पॉइंट में है फ्रेंड कि वो यस, टर्न डाउन ऑल माई रिक्वेस्ट फॉर अटेंडिंग पार्टीज़। और जब भी मैं पार्टी जाने की बात करता हूँ तो बोलते हैं नहीं, पार्टी में जाना नहीं है, फास्ट फूड नहीं खाना, देर रात तक नहीं जागना है। दूसरा प्रॉब्लम बताया गया, डिसअप्रूव ऑफ ऑलमोस्ट ऑल माय फ्रेंड्स। जितने भी मेरे फ्रेंड्स घर आते हैं सबको बोलते हैं ये फ्रेंड अच्छा नहीं, वो फ्रेंड अच्छा नहीं है, तुम्हें ऐसे संगति में नहीं रहना, वैसे नहीं रहना है। तो दीज आर द कंप्लेंट्स। पहले हमने कंप्लेंट सुना था पेरेंट्स का, और अब हम कंप्लेंट सुन रहे हैं अपना, यानी कि हम क्या व्यू रखते हैं, पेरेंट्स हमें किस तरह से अपोज करते हैं, टोक टाक करते हैं। तो ये हमने पॉइंट्स लिखा है, कुछ पॉइंट्स आपके लिए ब्लैंक रखा गया, इसमें आप लिख के मुझे भेजेंगे। अब A1 पे चलते हैं। डू यू वांट टू नो द रियल यू, क्या आप अपने आप को डिस्कवर करना चाहते हैं? तो एक क्वेश्चन आयर यहाँ पे दिया गया है फ्रेंड, आप देखें कि अब इसका आंसर दें, बहुत मज़ेदार है। चलो इसको हम लोग करते हैं लाइक ए गेम, और फिर इस पे आप खुद को मार्क्स देंगे और बताएंगे कि आप कहाँ पर हैं। चलिए देखते हैं। नंबर ए, इफ़ योर फ्रेंड्स हैव प्लान्ड अ पार्टी योर पेरेंट्स डोंट अप्रूव ऑफ, व्हाट वुड यू डू? क्वेश्चन इज दैट, एक पार्टी रखी गई है आपके फ्रेंड्स के द्वारा और आपके मम्मी पापा बोलते हैं नहीं नहीं जाना है, तो आप क्या करेंगे? नॉट अटेंड द पार्टी, क्या आप पार्टी अटेंड करेंगे कि नहीं? लाई अबाउट इट एंड अटेंड, और आप कुछ बोल देंगे नहीं, क्लास है या ट्यूशन है, कुछ झूठ बोल के अटेंड कर लेंगे। या कीप पेस्टरिंग योर पेरेंट्स टिल दे आर फोर्स टू से, या आप बार 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 बोलते रहेंगे पेरेंट्स को जब तक कि वो यस न कर दें। आप क्या करेंगे तीनों में से? तो मैं यहाँ पे आपको आंसर नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि भाई आपको खुद को जज करना है, और यहाँ पे मैं क्लास में भी होता तो आंसर नहीं देता, बल्कि आपसे ही पूछता कि आप क्या करेंगे, आप किस तरह के व्यक्ति हो, ठीक है? तो आप इसमें टिक करो। हाँ, अगर आप मेरा पर्सनल राय जानना चाहेंगे तो मैं क्या करता कि मैं पार्टी अटेंड नहीं करता, ठीक है? रेस्ट डिपेंड्स ऑन यू, आपका सेकेंड और थर्ड नंबर भी आंसर हो सकता है। दूसरे क्वेश्चन आयर पे चलते हैं। बी नंबर देखो सिचुएशन क्या है कि इफ़ यू शॉ अ क्लासमेट ऑफ योर्स चीटिंग इन एन एग्जाम यू वुड, तो आप क्या करेंगे? पॉइंट, सर्किल नंबर 1 इग्नोर कर देंगे, सर्किल नंबर 2 टेल द टीचर, टीचर को बता देंगे, टॉक टू द क्लासमेट अबाउट इट आफ्टर द एग्जाम। तो आप क्या करेंगे कि दूसरे क्लासमेट को बताएंगे जानता है वो चोरी कर रहा था, वो चोरी कर रही थी, यू विल इग्नोर इट, यू विल टेल द टीचर। आप क्या करेंगे? इट डिपेंड्स ऑन यू, यू डू इट ऑनेस्टली, रॉन्ग और राइट, ओके, एंड देन लेट मी नो योर आंसर। सी नंबर, इफ यू शॉ एन ओल्ड लेडी स्टैंडिंग एट द एंड ऑफ क्यू लाइन while you were right ahead you would, एक ओल्ड लेडी बुढ़िया है बेचारी, वो आपके लाइन से पीछे खड़ी है और आप लाइन में आगे आपकी जगह है, तो आप क्या करेंगे? ध्यान नहीं देंगे, क्यों पीछे आई थी? इग्नोर द लेडीज़ प्रेजेंस। नंबर 2, एक्सचेंज प्लेसेस विथ हर, कि आप उनको आगे आने देंगे अपनी जगह पर और उस बुढ़िया के पास आप चले जाएंगे कि भाई आप आ जाइए आगे, क्योंकि आप कमज़ोर हैं, वृद्ध हैं, मेरी माता या दादी के समान है, आप आगे आ जाओ, मैं पीछे चला जाता हूँ आपकी जगह पे, क्योंकि आपके शरीर में एनर्जी है, भी ताकत है, आप थोड़ा इंतजार कर सकते हैं, आप वो करेंगे। या आस्क समवन टू स्टैंड इन क्यू फॉर हर, या किसी और को बोलेंगे अपने बदले कि भाई तुम उस बुढ़िया के पास जाके खड़े हो जाओ और बुढ़िया को आगे बढ़ने दो। व्हाट विल बी योर चॉइस? सो इट वाज फॉर सी नंबर। डी नंबर आपका चॉइस आपको देखना है कि इफ़ योर फ्रेंड गेव यू अ टी शर्ट दैट वाज नॉट योर लाइकिंग, कोई फ्रेंड आपको टी शर्ट देता है, कोई गिफ्ट देता है जो आपको पसंद नहीं है। आई एम रीडिंग डी नंबर।
तो आप क्या करेंगे? से समथिंग नाइस, कुछ अच्छा बात बोलेंगे और उस टी शर्ट को रख लेंगे। से फ्रैंकली दैट यू डिडंट लाइक इट, कि साफ साफ बोल दें कि भाई ये तो मुझे अच्छा नहीं लगा। या से थैंक यू एंड वेयर इट, या थैंक यू बोल के इसको पहन लेंगे। इट डिपेंड्स ऑन यू, आप कैसे नेचर के हो, आप इसको खुद छांटो। तो ये क्वेश्चनायर से आपको पता चलेगा कि आप किस तरह के व्यक्ति हो। चलिए अब A2 पे फ्रेंड। पीपल पीपल यू मीट हैव डिफरेंट ट्रेड्स, सम डिज़ायरेबल एंड अदर डिज़ायरेबल। सभी लोगों के अलग अलग लक्षण होते हैं फ्रेंड। कुछ आपको पसंद आता है, कुछ आपको पसंद नहीं आता। रीड सम ऑफ द ट्रेड्स, कुछ लक्षण यहाँ पे दिए हुए हैं, ट्रेड्स दिए हुए हैं गिवन बिलो, एंड टिक द वंस यू हैव हर्ड ऑफ, जिसमें से आप कुछ सुने हैं उसको टिक करें। लुक अप डिक्शनरी टू फाइंड द मीनिंग ऑफ अदर्स, इसको डिक्शनरी वर्क करके मेरे पास भेज देना। चलो एक दो देख लेते हैं। कुछ लोग ओबीडियंट होते हैं, कुछ लोग ओबीडियंट होते हैं, तो कुछ लोग आर्गुमेंटेटिव होते हैं। तो ऐसे आप देखेंगे कि आप किस तरह के लोगों से मिले हो, वो आप इसको लिस्ट बना के मीनिंग लिख लेना। दैट इज डिक्शनरी वर्क। अब मैं आपको मीनिंग बता सकता था, लेकिन इसलिए भी नहीं बता रहा हूँ कि फिर आप डिक्शनरी छुओगे नहीं, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन डिक्शनरी यूज़ नहीं करोगे, और नहीं करोगे तो कैसे होगा। डिक्शनरी का यूज़ इसलिए टीचर्स करवाते हैं फ्रेंड, क्योंकि आप डिक्शनरी में एक बार ढूंढने जाएंगे तो आप एक दो एक्स्ट्रा भी आपको दिखेंगे, एंड दैट इज़ वेरी गुड फॉर योर वोकेबलरी बिल्डिंग। तो उसको आप कर लेना बाद में वीडियो ब्रेक करके या फिर वीडियो देखने के बाद। नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ता हूँ। नाउ राइट द वर्ड्स हुज मीनिंग आर गिवन बिलो, ऑल्सो लिस्ट देम एज डिजायरेबल और अनडिजायरेबल। तो देखो ये जो ऊपर हमने वर्ड्स पढ़े थे, इसमें से यहाँ पर मीनिंग एक्चुअली दिया हुआ है। तो जब आप डिक्शनरी से मीनिंग देख लेंगे तो फिर आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि कौन सा किसके साथ मैच कर रहा है। तो आप उसको मैच करके बताएंगे कौन सा किसका अर्थ होगा। ठीक है। अब फिर से जो यहाँ डिजायरेबल ट्रेड्स हैं हमारे पास, आर्गुमेंटेटिव, ब्रूटिस, ओबीडियंट, इस तरह के जो डिजायरेबल ट्रेड्स हैं, और जो अनडिजायरेबल ट्रेड्स हैं उसके लिए यहाँ पे ब्लर्स दिए हुए हैं। तो आप इसमें बॉक्सेस में, ब्लर्स में आप इसको, क्लाउड्स में इसको डाल देंगे। ये एक्सरसाइज है वर्ड अटैक का। जब आप वर्ड अटैक एक्सरसाइज करते हो तो आपको वर्ड्स हमेशा के लिए याद हो जाता है। तो डिजायरेबल ट्रेड्स में क्या होता है कि आप जैसे मान लो कि यहाँ पे ऑनेस्ट लिखते हैं, ऑनेस्ट और ऑनेस्टी, तो डिजायरेबल हो गया। अनडिजायरेबल क्या हो गया? आर्गुमेंटेटिव, आर्ग्यूमेंट। तो आर्गुमेंट कोई करता हो, ठीक है। आप देख सकते हो इस व्यक्ति का एक्सप्रेशन और इस व्यक्ति का एक्सप्रेशन देख सकते हो। एक्सप्रेशन से भी आप वर्ड्स को छांट सकते हो कि यहाँ पे कौन कौन सा डिजायरेबल ट्रेड्स में वर्ड्स आएगा, और यहाँ पे कौन कौन सा अनडिजायरेबल ट्रेड्स में वर्ड्स आएगा। यहाँ गुस्सा वाला, गुस्सा वाला, ठीक है। और दूसरे निगेटिव वर्ड्स, यहाँ पे सारे निगेटिव वर्ड्स आएंगे, यहाँ पे सारे पॉजिटिव वर्ड्स आएंगे। ठीक है, इसको आप कर लेना। आई हैव टू हिंट, आई हैव टू मेक यू अंडरस्टैंड, बट वर्क यू हैव टू डू। नेक्स्ट इन A3, लेट अस नो understand the contrasting point of view of the teenagers and of their parents. Read the dialogues between a counselor and Pranay and between the counselor and Pranay's mother. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रणय, यहाँ जो बैठा हुआ है लड़का इस पिक्चर में, वो प्रणय है, और यहाँ पे उसकी एक काउंसलर है। तो प्रणय क्या क्या सोच है और उनके पेरेंट्स का क्या सोच है, यहाँ पे हम एक काउंसलर के माध्यम से समझेंगे। काउंसलर इज द पर्सन हु गिव्स यू गुड काउंसल्स। एक इविल काउंसलर भी होते हैं, कोई दोस्त जो आपका फ्लैटरिंग करता है, प्रशंसा करता है और आपको गड्ढे में डाल देता है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो आपको अच्छी सोच के लिए, अच्छे आगे बढ़ने के लिए काउंसलिंग करता हो, अच्छे विचार देता हो, ही इज़ द काउंसलर। तो फिर देखते हैं काउंसलर से क्या बात हो रही है प्रणय की। काउंसलर स्पीक्स टू प्रणय। ही वाज ए लैंकी बॉय, वो पतला दुबला लड़का है। कौन? प्रणय, राइट। एंड टॉलर देन द अदर बॉयज ऑफ क्लास 12, वो क्लास 12 में पढ़ता है और दूसरे सभी बच्चों से बड़ा है साइज में। ही ऑल्सो हैड लॉन्ग हेयर, आप देख सकते हो पिक्चर में कि उसके बाल बड़े हैं। एंड द काउंसलर वंडर्ड व्हाई हिज क्लास टीचर हैड नॉट चेक्ड हिम फॉर इट, और उसके काउंसलर को आश्चर्य होता है कि भाई क्लास टीचर ने इतने बड़े बाल कैसे अलाउ किए उसे रखने देने के लिए। और वो पूछता है, मे आई कम इन? ही आस्क्ड द डॉक्टर, एक्चुअली दैट काउंसलर इज ए डॉक्टर। ओके, यस प्लीज डू। He came in and sat down. According to picture you can see sat down with a heavy sigh. Actually heavy sigh का मतलब होता है आहें भरना। वो चाहता नहीं था एक्चुअली, he is feeling bored, and और उसको आके यहाँ बैठना पड़ा। He said, my name is Pranay ma'am, could you please speak to my parents when they come for the parents teacher meeting? They are so critical about everything that living at home is like hell. They are impossible. According to them I don't do anything right. और प्रणय कहता है कि भाई मेरे मम्मी पापा को ना तो कुछ भी पसंद नहीं है, उन्हें लगता है कि मैं कुछ भी काम ठीक नहीं करता। फॉर गॉड शेक, ईश्वर के लिए, गिव मी अ ब्रेक, आई वांट ब्रेक। ये रोज रोज का टोकना, रोज रोज का बोलना, मैं ना तंग आ चुका हूँ। तो आई एम नॉट अ लिटिल किड, वो कहता है कि मैं देखिए छोटा बच्चा नहीं हूँ, बार बार कोई बोलता मुझे। आई डू नॉट नो टू कंडक्ट माई सेल्फ एंड आई लाइक
I know what to do and what not to do. Now I am sliding this video here so that the next line will be clear. Do and what not to do, what, but I have to be इंस्ट्रक्टेड ऑल द टाइम। उसको क्या पसंद नहीं है, वो उसको ये पसंद नहीं है कि हर समय उसको कोई इंस्ट्रक्ट करे, बताता रहे, सिखाता रहे, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। आई कैन सी दैट यू आर बोथ अपसेट एंड एंग्री। तो वो काउंसलर कहती है कि तुम्हारी मम्मी और वो तुम दोनों अपसेट हो, तुम दोनों एक दूसरे से परेशान हो। हैज़ दिस बीन अफेक्टिंग यू सिंस ओनली रिसेंटली, सी आस्क्ड। क्या हाल से ये अभी अभी ये हाल हुआ या पहले ही से ऐसा चल रहा है तुम्हारा? देखो फिर आगे चलते हैं। नो मैम, एक्चुअली आई एम reading here to indicate you from here. No ma'am, it has always been like this. प्रणय is saying कि भाई ऐसे ही चलते रहा, शुरू से ही ना चिड़चिड़ा चिड़चिड़ा चल रहा है। It is just that during the last 1 year, I have been finding it unbearable। और मुझे बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, घर में रहना मुझे नहीं लग रहा है कि मेरा अपना घर है, अच्छा घर है। What do they normally ask you to do and what are the things they ask you not to do? अब काउंसलर पूछ रहे हैं, वो क्या मना करते हैं पेरेंट्स तुमको, क्या करने के लिए ओके करते हैं, क्या करने के लिए मना करते हैं, ज़रा मुझे भी बताओ। तो मैं यहाँ से आगे पढ़ूँगा। फ्रेंकली, और सबसे बड़ी बात वो जो कहना चाहता है कि फ्रेंकली आई एम स्टॉप्ड फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। अगर सच कहूँ तो मुझे सब कुछ करने के लिए रोका जाता है, कुछ भी नहीं। आई वांट टू एंड एम टोल्ड टू डू एवरीथिंग। और एक बात ऐसी है कि मुझे सब कुछ करने के लिए भी कहा जाता है और सब कुछ करने से मना भी किया जाता है। जब मैं कुछ करता हूँ तो लोग बोलते हैं कि ये ठीक नहीं है, और जब नहीं करता तो बोलते हैं वो क्यों नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, आई एम सपोज टू स्टडी। देखो यहाँ पे वो एग्जाम्पल दे रहा है, अपना व्यू रख रहा है प्रणय। ये हम बात कर रहे हैं जनरेशन गैप की, कि प्रणय और उसके पापा यानी आज के जनरेशन और उसके पहले की जनरेशन में क्या सोच होता है उसकी मम्मी। तो प्रणय की मम्मी और प्रणय के पापा दोनों का सोच कैसा है, इसको समझने का हम प्रयास कर रहे हैं थ्रू काउंसलर। एवरी डे फॉर लॉन्ग पीरियड्स, वो उम्मीद रखते हैं कि मैं देर तक, लॉन्ग पीरियड तक घर में रोज़ पढूँ, ठीक है। आई एम नॉट सपोज टू इंटरेक्ट विद फ्रेंड्स, और वो ये नहीं चाहते कि मैं फ्रेंड्स से बात करूँ। एक्सेप्ट ऑन वीकेंड्स, वो चाहते हैं कि मैं केवल वीकेंड्स में, सप्ताह के अंत में संडे को फ्रेंड्स से बात करूँ, बाकी दिन मैं केवल पढ़ता लिखता रहूँ, वो यही चाहते हैं। अब देखो नेक्स्ट कहानी कहाँ चलता है, हम भी चलेंगे। दे डू नॉट अलाउ मी टू यूज़ द फ़ोन। वो कहते हैं फ़ोन यूज़ मत करो। आई हैव माई मोबाइल एंड जनरली यूज़ दैट। मेरे पास एक मोबाइल है जिसका मैं प्रयोग करता हूँ। इट इज़ ओनली व्हेन माई कार्ड इज एग्जॉस्टेड। यहाँ पे कार्ड इज एग्जॉस्टेड का मतलब होता है फ्रेंड कि जब उसका बिल ख़त्म हो जाता है। दैट आई यूज़ द लैंडलाइन। अब देखो लैंडलाइन भी यूज़ कर रहा है, लेकिन इसका कहना है कि तब लैंडलाइन यूज़ करता है वो घर का, जब उसका कार्ड या बिल समाप्त हो जाता है मोबाइल का। अब मम्मी पापा को क्या लगता होगा कि अपना मोबाइल भी यूज़ करता है और लैंडलाइन भी यूज़ करता है, कितना सारा बातें करता है। देखो यहीं पे गैप होता है फ्रेंड, और आर्गूमेंट घर में बढ़ते हैं। बहुत प्रैक्टिकल और अच्छा चैप्टर है ये, अगर आप ध्यान से सुनो कि कहाँ पर गैप रह जाता है जिससे मम्मी पापा हमारे नाराज़ होते हैं, या हम कैसे उसको बैलेंस बना सकते हैं। जब हम दूसरे के बारे में पढ़ते हैं तो अपने बारे में सीखते हैं। कुड इट बी दैट दे आर कंसर्न अबाउट योर बोर्ड एग्जाम्स। हो सकता है कि टीचर या काउंसलर बोल रही, हो सकता है कि बोर्ड एग्जाम की वजह से तुमको वो लोग मना करते होंगे। शी क्वेरीड, आई डोंट सी व्हाई। पता नहीं, मुझे कारण तो कुछ दिखता नहीं क्या है उनको। आई वॉज ओके इन द 10th क्लास बोर्ड एग्जामिनेशन। 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन में मैं ओके था, फिर 12 में मैं क्या गड़बड़ हो जाऊँगा। आई गोट अ गुड परसेंटेज एंड द स्ट्रीम ऑफ माई चॉइस। और फिर मेरा जो चॉइस था उसमें मैंने आर्ट या साइंस जो भी था मुझे मिला भी, मुझे मार्क्स भी अच्छा मिला। व्हाई डोंट यू एक्सप्लेन थिंग्स टू देम जेंटली। तो काउंसलर कह रही है कि भाई तुम अच्छे से यही बात माता पिता को जेंटली क्यों नहीं समझाते हो। गुड गॉड, हे भगवान, देयर इज़ नो जेंटल टॉकिंग इन माय हाउस। मेरे घर में ना तो कोई शांति से बात ही नहीं करता, बस वो चिल्ला के बात करते हैं। डैड जस्ट येल्स एट मी। ये येल्स वर्ड जो है, येल्स का मतलब होता है चिल्लाना, येल्स। वो कहता है कि बस डैड को क्या है ना कि बस वो मेरे पे तो चिल्ला के ही बात करते हैं, वो कभी भी शांति से बात नहीं करते हैं, वो चिल्ला के ही बात करते हैं। आगे देखते हैं, व्हाट अबाउट योर मदर। तुम्हारी मम्मी का क्या हाल है। वेल, शी डजंट येल, वो चिल्लाती नहीं है, बट ऑलवेज सपोर्ट्स बोथ माई डैड्स व्यू पॉइंट एंड हिज एक्शंस। लेकिन वो मम्मी का सपोर्ट करती है, मम्मी जो है वो पापा का सपोर्ट करती है। वो चिल्लाती तो नहीं, लेकिन बोलती है कि पापा जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। सो इफ़ आई गेट यू राइट, यू फील काइंड अप ट्रैप्ड बिटवीन व्हाट यू वांट टू डू एंड व्हाट यू आर अलाउड टू डू, एंड दैट मेक्स यू एंग्री। अच्छा, तो तुम कुछ करना चाहते हो, तुम्हें करने नहीं मिलता, और यही सबसे तुम नाराज़ रहते हो। दैट्स
एन अंडरस्टेटमेंट, आई फील लाइक हिटिंग आउट। हाँ, ये बिल्कुल छिपी हुई बात है, मुझे लगता है ना कि मैं परेशान हो रहा हूँ, मुझे कोई धक्का दे रहा है, मुझे मार रहा है, ये टॉर्चर फील करता हूँ मैं। काउंसलर स्पीक्स टू प्रणय's मदर। अब प्रणय चला जाता है फ्रेंड, आप पिक्चर में देख सकते हो कि प्रणय की मम्मी है यहाँ, अब उनका क्या व्यू है, काउंसलर उनसे बात करना चाहती है। तो ऑन द डे अब द पेरेंट टीचर मीट, इट वाज ओनली प्रणय's मदर हु केम। शी वाज अ स्मार्टली ड्रेस्ड लेडी, आप देख सकते हैं पिक्चर में कि एक जेंटल लेडी लग रही है, विद जेंटल मैनर्स एंड कल्चरल वॉइस, और उनका व्यवहार भी अच्छा है और सब कुछ ठीक है। जैसे कि ये नहीं लग रहा है, सब कुछ ठीक का यहाँ पर मतलब है कि ये नहीं लग रहा है कि वो एक फायर्स लेडी होगी, बहुत गुस्साती होगी, उनका व्यवहार सौम्य है, ऐसा लगता है उन्हें देखकर। द काउंसलर टोल्ड हर दैट प्रणय वाज फीलिंग सम स्ट्रेस एट होम एंड दैट परहैप्स they needed to work this out to help him be relaxed for his exams. To be frank, we too feel the stress because of him, she started. और अब वो कह रही कि वो उसे क्या स्ट्रेस होगा, उसके वजह से तो हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो प्रणय की मम्मी आगे कहती है, कैन यू एलेबोरेट ऑन दैट। तो काउंसलर कहती है कि क्या आप उसका विस्तार से वर्णन कर सकते हैं कि मामला क्या है। यू सी, ही हैज़ बिकम वेरी डिफरेंट एट होम, ही इज़ डिफियंट, डिसोबीडियंट एंड डिसरिस्पेक्टफुल। ना तो वो किसी का बात मानता है और वो बड़ा उज्जड़ स्वभाव का हो गया, स्पेशली विद हिज फादर, खास करके पापा को तो वो देखना नहीं चाहता। ही हैज़ ऑल्सो गोट अ सेट ऑफ हाई फ्लाइंग फ्रेंड्स। अब उसके महंगे महंगे दोस्त हैं, हाई फ्लाइंग फ्रेंड्स हैं, जो इसके के ऊपर काफ़ी खर्च वगैरह चाहिए, समय चाहिए जो उन्हें देता है। भाई हम मिडिल क्लास के लोग हैं और हाई फ्लाइंग फ्रेंड्स को कैसे मेंटेन करेंगे वो। हु हैव अ लॉट ऑफ मनी टू स्पेंड, जिनके पास बहुत पैसा है खर्च करने के लिए। माई सन ट्राइज टू कीप अप विद द सेम स्टैंडर्ड। अब मेरा भी बच्चा चाहता है कि अब उसी स्टैंडर्ड के साथ उनके साथ हम चलें। भाई हमारे पास उतना पैसा नहीं है कि हम उस स्टैंडर्ड में उसको लेके चलें, है ना। तो अगर वो ये चाहेगा तो हम उसको नहीं कर पाएंगे। माई सन्स हाई डिमांड्स, अब इस तरह से जब उसके ऐसे दोस्त हैं तो उसके डिमांड्स भी बड़े बड़े हैं। इन माई हस्बैंड्स कॉन्स्टेंट टॉन्ट्स, बस वो डिमांड हाई करता है और वो टॉन्ट करते हैं कि तुम आज तक क्या कर लिए हो, क्या पढ़ाई कर रहे हो, इतने सामान क्यों चाहिए तुम्हें। इट हैज़ नॉट बीन ईजी, आई हैव टू यंगर डॉटर्स एंड दे आर वेरी अंडरस्टैंडिंग। उसी के जगह पे, प्रणय की जगह पे मेरी दो बेटियां हैं जो उससे छोटी हैं, वो बड़ा अंडरस्टैंडिंग है, वो कभी मुझे तंग नहीं करती। दे मेक नो डिमांड्स एंड आर कॉन्टेंट, और वो कॉन्टेंट है, कॉन्टेंट यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है संतुष्टि के लिए। कॉन्टेंट विद द फ्यू थिंग्स वी कैन अफोर्ड, दे स्टे आउट ऑफ देयर फादर्स वे, जनरली डू व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ देम, और उनसे वही वो करती हैं जिनसे जो उम्मीद की जाती है उनसे। हाउ ओल्ड आर योर डॉटर्स, आपकी बेटियां कितनी बड़ी हैं, काउंसलर पूछती है प्रणय की मम्मी से। द काउंसलर वांटेड टू नो, द ओल्डर वन इज 15 एंड द यंगर वन इज 12, एक 15 की है और एक 12 की है। इट मस्ट बी रियली हार्ड ऑन यू, अब तीन तीन बच्चे हैं, बड़ा दिक्कत है। यस, ट्राइंग टू बी बफर बिटवीन फादर एंड सन। अब मम्मी को क्या दिक्कत है ना कि फादर इधर इधर, शन बीच में बेचारी पड़ जाती है। प्रणय हैज़ बिकम इनसेंसिटिव टू द फैमिली सिचुएशन, ही डज नॉट अंडरस्टैंड दैट, वो समझता नहीं है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, कि किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा बुरा होता है। आई डू प्रोवाइड द एसेंशियल बट एक्स्ट्रावेगेंजा सी, मित व्ययी, अधिक खर्च करने वाला, एंड अनड्यू एक्सपेंडिचर, और बिना मतलब का खर्च, हैव टू बी कट डाउन, ये तो समाप्त होना चाहिए ना किसी परिवार में। हैव यू एवर ट्राई टू डिस्कस विथ हिम, क्या आपने ठीक से कभी बात किया है, डिस्कस थिंग्स विथ हिम। आई एम अफ्रेड दैट आई विल बी लाइक थ्रोइंग वाटर ऑन ए डक्स बैक। देखो एक बहुत अच्छा यहाँ पे फ्रेज यूज हुआ है कि डक्स तो पानी में ही रहता है और उसके आप पूंछ पे पानी डालेंगे तो उसको कुछ खास असर नहीं होगा। तो वैसे ही है कि थ्रोइंग वाटर ऑन डक्स बैक, उस पर कुछ भी करो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ही इज़ इम्यून टू थिंग्स, और वो इन सब चीज़ों का आदी है, डांट वाट खाने का ना उसको आदी हो गया है, वो बर्दाश्त कर लेता है। इम्यूनिटी इसी से बना है फ्रेंड, इम्यून से, उसके पास ये इम्यूनिटी पावर है कि वो सब झेल ले। इट्स अमेजिंग दैट द गर्ल्स हु आर मच यंगर देन हिम, जो उससे छोटी अंडरस्टैंड थिंग्स, जबकि वो बड़ा है, सो मच बेटर देन आर शो अकोमोडेटिंग। डू यू टेल प्रणय दिस, क्या प्रणय को आपने ये बात बोला है। मेरा वीडियो जहाँ पे चल रहा है उसके ठीक नीचे वाला लाइन में पढ़ रहा हूँ फ्रेंड, डू यू टेल प्रणय दिस। आई डू, टाइम एंड अगेन, कभी कभी मैं उसे बताती हूँ। बट द थिंग्स, इट इज़ बिकॉज आई एम पार्शल टू द गर्ल्स,
लेकिन उसे क्या लगता है कि मैं गर्ल्स के प्रति पार्शियल हूँ, मैं वो उसका पक्ष लेती हूँ। चिल्ड्रन डू नॉट लाइक बीइंग कंपेयर्ड, चिल्ड्रन को कभी भी कंपैरिजन पसंद नहीं है, दे फील इट्स अनफेयर, उनको इंसल्ट होता है। समटाइम्स इट गेट्स देयर बैक अप when they encounter real or imagined partiality. This could be one of the reasons why pranay is being difficult, the counselor explained. और आप ये जो तुलना कर दी है ना, ये तुलना करना छोड़ दीजिए बच्चों का के बीच में, ये ठीक नहीं है। I doubt it, I feel he is just insensitive to the right and the wrong, उसको सही और गलत का कुछ होश नहीं है। What areas do you and Pranay have disagreement on, कौन सी बातों पर आप लोगों का विशेष झगड़ा होता है, या फिर ऐसा होता है कि आपको लगता है कि प्रणय नहीं समझ रहा हो। मस्टली अबाउट हिज डिमांड्स, वही जो भी वो डिमांड्स करता है। मस्ट ऑफ देम इन्वॉल्व मनी, जिसमें सब में पैसा लगता है, बट ही ऑल्सो डज नॉट रियलाइज सम बेसिक थिंग्स, लेकिन वो छोटी छोटी बातें समझता नहीं है। ही हार्डली पुट्स इन टाइम फॉर स्टडीज बट कैन स्पेंड आवर्स एंड आवर्स ऑन द टेलीफोन, पढ़ने में तो कम समय लगता है लेकिन घंटों टेलीफोन पे लगा रहता है। समटाइम्स आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स कंप्लेन दैट दे कैन नेवर गेट इन टच विथ अस बिकॉज द फोन इज ऑलवेज इंगेज्ड। अब ये क्या है कि हमें पता कैसे चलता है कि भाई आपका फ़ोन हमेशा एंगेज आता है, क्या बात है? इस कंप्लेन से हम समझ जाते हैं कि वो हमेशा फ़ोन करते रहता है। टू एनकाउंटर दिस प्रॉब्लम आई बॉट हिम अ मोबाइल, चलो भाई मैंने लैंडलाइन पे वो बिज़ी रहता था, दोस्तों से बात करता था, तो मम्मी कहती है कि मैंने उसके लिए एक फ़ोन भी खरीद दिया। तो अब ₹500 का उस पे रिचार्ज भी हो जाता है, देखो एवरी मंथ ₹500 का उसका रिचार्ज होता है। दिस गेट्स ओवर इन अ वीक, लेकिन वो एक ही सप्ताह में इसको समाप्त कर देता है, और 10 डेज़, कभी-कभी तो मैक्सिमम 10 दिन ले जाता है। लेकिन माय पुअर गर्ल्स, मेरी बेटियाँ ऐसी नहीं हैं, परहैप्स यू नीड टू असर्ट योरसेल्फ मोर, द काउंसलर सजेस्टेड, ज़रा और बताइए कि क्या और क्या होता है। देन ही बिकम्स मोर डिफिकल्ट एंड आर्गुमेंटेटिव, तब वो और आर्गुमेंटेटिव हो जाता है एंड ऑलमोस्ट ब्रूटिस, और बिल्कुल जानवर सा व्यवहार करने लगता है। ब्रूट से बना है ब्रूटिस, ब्रूट मीन्स एनिमल फ्रेंड। ओके लेट मी डिस्कस दिस विथ प्रणय, अच्छा ठीक है मैं प्रणय से ये बात करती हूँ, काउंसलर कहती है। आई होप यू कैन मेक सम हेडवे, हेडवे इज स्ट्रेट वे, बिकॉज आई एम एट द एंड ऑफ माई टेदर। और यहाँ पे टेदरिंग, टेदरिंग द काउस आप पढ़े होंगे। टेदर मीन्स होता है वो रस्सी जिससे गाय को या किसी जानवर को बांधा जाता है, और रस्सी के अंतिम छोर पर इसका इसका अर्थ हो रहा है जीरो टॉलरेंस। ओके, जीरो टॉलरेंस यहाँ पे आ रहा है कि एंड ऑफ माई फिदर मीन्स जीरो टॉलरेंस पे वो आ रहा है बात, कि मैं अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है कोई चीज़ें। तो आगे ये उम्मीद करते हैं हम कि काउंसलर बात करके प्रणय से, और प्रणय का व्यवहार पहले से कुछ सुधरेगा और ये बैलेंस बनेगा, जनरेशन गैप जो है उसको वो समझने का प्रयास करेगा। हम चलते हैं A4 में। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द पैसेज। प्रणय वेंट टू द काउंसलर बिकॉज, प्रणय क्यों जाता है काउंसलर के पास, आपको ढूंढ के लिखना है या सोच के लिखना है। द कॉज ऑफ प्रणयज एंगर एंड बीइंग अपसेट, अब अगर आप इसको गौर से सुने हो चैप्टर को, नहीं तो फिर से सुन लो और बताओ कि प्रणय के एंगर का क्या कारण है। प्रणय थॉट हिज मदर वाज बेटर देन हिज फादर, अब फादर से अच्छा मदर को मानता है, क्यों क्यों चिल्लाती नहीं है, और कुछ कारण है आपने सुना होगा। हाउएवर सी टू एडेड टू प्रणय स्ट्रेस बाय, और हालांकि वो भी उसके चिंता को, टेंशन को बढ़ाती है, क्या करके मम्मी भी टेंशन को बढ़ा देती है पापा का सपोर्ट करके, या क्या करती है। प्रणय's फ्रेंड एडेड टू हिज मिजरी ऑफ हिज पेरेंट्स बिकॉज, उसके दोस्त भी मम्मी पापा के कष्ट के कारण है, क्यों वो क्या करते हैं, प्रणय के दोस्त क्या करते हैं जिससे कि प्रणय का व्यवहार बदलता है, या और कोई बात है जिससे कि उसको टेंशन होता है। थिंग्स वर F नंबर, थिंग्स वर डिफिकल्ट टू प्रणय's मदर बिकॉज शी हैड टू फेस बोथ, क्या क्या फेस करना पड़ता है मम्मी को, पापा की तरफ से, प्रणय की तरफ से क्या फेस करना पड़ता है। द मदर्स थॉट प्रणय मिसयूज द फैसिलिटीज गिवन टू हिम, तो क्या फैसिलिटी मिला है प्रणय को और क्या मिसयूज करता है। गर्ल्स के बारे में मदर का क्या थॉट है, माई पुअर गर्ल्स इज वाट प्रणय's मदर फेल्ट फॉर हर डॉटर्स, सी फेल्ट सो बिकॉज, क्यों उसके बारे में बेचारी गर्ल्स, पुअर गर्ल्स कह रही है, कंसिडरेट है प्रणय की मदर अगर बच्चियों के प्रति, तो क्यों। A5 में आप ट्रेड्स को दोनों में लिखेंगे कि प्रणय के स्ट्रेस का क्या कारण है पॉइंट्स, और मम्मी के स्ट्रेस का क्या कारण है, इधर पॉइंट्स लिखेंगे आप कि वाई प्रणय इज इन द स्ट्रेस, इन द स्ट्रेस, उसकी चिंता का कारण, टेंशन का कारण, और मम्मी के टेंशन का कारण आप ढूंढ ढूंढ के चैप्टर से लिखेंगे, मुझे भेजेंगे टू बी चेक्ड। और बी नंबर पॉइंट में वाट वाट ही काइंड ऑफ, उसके पापा कैसे हैं, वाट ही थिंक्स ऑफ, सॉरी वाट ही थिंक्स ऑफ हिज फादर, पापा के बारे में उसकी क्या सोच है, मम्मी के बारे में क्या सोच है, दोस्तों के बारे में क्या सोच है। बी नंबर वाट सी थिंक्स ऑफ प्रणय, प्रणय के बारे में मम्मी की क्या सोच है। बी नंबर में आप देखेंगे कि पॉइंट नंबर 2, प्रणय इसके फ्रेंड के बारे में मम्मी क्या सोच है, और हस्बैंड के बारे में क्या सोच है, ये आप देखेंगे यहाँ पे। फिर हम आगे चलें तो आपको यहाँ मिलेगा
कि हाउ ही फील्स अबाउट हिमसेल्फ, प्रणय का अपने आप के बारे में क्या सोच है। हाउ ही फील्स अबाउट हिज स्टडीज़, पढ़ाई के बारे में क्या सोच है। दूसरी तरफ जब बॉक्स में देखेंगे सीन नंबर, हाउ सी फील्स अबाउट हर सेल्फ, प्रणय की मम्मी को अपने बारे में क्या सोच है, क्या वो अपना रोल प्ले ठीक कर रही है। और दूसरी बात है कि व्हाट सी थिंक्स अबाउट हिज स्टडी, और प्रणय के स्टडी के बारे में वो क्या सोचती है। अब हम चलेंगे हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स पे फ्रेंड। हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स में है कि सपोज यू कम अक्रॉस ए चाइल्ड, मान लिया कि आप एक बच्चे से मिले, है ना, ग्रैपलिंग विद अ सिचुएशन सिमिलर टू दैट ऑफ प्रणय, प्रणय के जैसा ही किसी बच्चे को आप देखते हो, एंड डिसाइड टू एक्सटेंड द बेस्ट पॉसिबल हेल्प टू देम, और आप चाहते हैं कि इस बच्चे को आप हेल्प करें, तो आप क्या काउंसलिंग करेंगे, उसको क्या बताएंगे, क्या समझाएंगे। हाउ वुड यू गो अबाउट मेंटरिंग देम इन सच ए सिनारियो, ऐसी स्थिति में आप उस बच्चे को कैसे हेल्प करेंगे, क्या समझाएंगे फ्रेंड आप उसको। और यहाँ पे आपको वो लिख के बताना, मुझे भेजना है। लाइफ स्किल्स में इसमें आप देखेंगे कि he has also got a set of high flying friends who have a lot of money to spend। प्रणय के ऐसे दोस्त हैं जिसके हाई फ्लाइंग फ्रेंड्स है और उसके पास बहुत पैसे वाले दोस्त हैं, और वो बहुत खर्चीलू दोस्तों के ग्रुप में रहता है। माई सन ट्राइज टू कीप अप विद देम, और उनको मेंटेन करने में, उसके स्टैंडर्ड को मेंटेन करने में बड़ा दिक्कत होता है, यही दुख रोती है, लेमेंट्स करती है प्रणय की मदर। पीयर इन्फ्लुएंस और पीयर प्रेशर, यहाँ बात हो रहा है दोस्तों के प्रेशर का, दोस्तों के इन्फ्लुएंस प्रभाव का। तो ये पार्ट एंड पार्सल एक अंग होता है ग्रोइंग अप, जब आप बड़े होते रहते हैं तो आप भी चाहते हैं कि दोस्तों के साथ आप उनके रैंक का बने, आप उनके फैशन के कपड़ों को पहने, उनके साथ कभी भी आप नीचे ना हो। तो आपके एक्शन एंड एम्बिशंस पे फ़र्क पड़ता है। हाउ इज़ योर ओपिनियन, कैन दिस सिचुएशन बी बैलेंस्ड और हैंडल्ड, तो आपको ये बताना है एज 7 में कि पीयर प्रेशर को कैसे हम हैंडल करें, है ना, पीयर प्रेशर को कैसे हम बैलेंस करें, और अब ताकि हमारे पेरेंट्स जिनका जितना वो जो औकात है, जितनी हमारी हेल्प कर रहे हैं, उधर भी हम उनको भी बैलेंस बनाएं और अपने दोस्तों को भी बैलेंस बनाएं। तो ये हम कैसे कर सकते हैं फ्रेंड। फिर है वैल्यूज़। प्रणय's मदर हैड अ हार्ड टाइम कीपिंग अप विद द incessant and unreasonable, means incessant means continuous, unreasonable demand of her teenage son. She could no longer cope with his defiant and disrespectful full disposition. Do you also think that Pranay is defiant and disrespectful, क्या वो जिद्दी है और वो बात नहीं मानने वाला है, रिस्पेक्ट करने वाला नहीं है। तो हाउ वुड यू हैव बिहेव्ड हैड यू बीन इन प्रणय पोजीशन, प्रणय की जगह पे आप होते तो क्या करते। ठीक है, और फिर ये एक एक्सट्रैक्ट लिया गया है यहाँ से, और फिर ये यहाँ पे पॉसिबल मीनिंग पूछा गया, वर्ड एक्सरसाइज पूछा गया आपके चैप्टर में। गिवन बिलो आर सम फ्रेजेस, यहाँ पे कुछ फ्रेजेस हैं जिसका मीनिंग और यूसेज आपको करना है, दैट विल बी डन बाय विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी। इमेजिन दैट यू आर द काउंसलर, मान लो आप ही काउंसलर हो। चारू स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 इज अंडरगोइंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, अब आपको समझाना है एक बच्चे को जिसका नाम चारू है, वो क्लास 8 की स्टूडेंट है, आपको समझाना है, तो आप कैसे एक लेटर लिख करके चारू को समझाएंगे। यहाँ पे आप पॉइंट्स को देते हुए एक लेटर लिखेंगे चारू को। फिर देन एंड नाउ में यहाँ कंपेरिजन किया गया है कि स्टे होम, और स्टे होम में क्या हो रहा है कि रीडिंग, वाचिंग टीवी, हेल्पिंग मदर, एंजॉइंग नेचर भी हम कर सकते हैं बाहर जाके, गोइंग कंपेरिजिंग, गोइंग कैंपिंग, रिलैक्स एट द बीच, टेक, कुकिंग, रिलेशंस। तो खाली समय में आप ये कर सकते हैं, है ना, विजिट रिलेटिव, रिलेटिव के यहाँ जा सकते हैं। B2, तो B2 से हम बाद में देखेंगे फ्रेंड्स। ऑन द बेसिस ऑफ योर लिसनिंग टू द कन्वर्सेशन अबाउट द समर वेकेशन, वेकेशन में हम क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है, आप उसको देखेंगे। एक्टिविटी क्या कर सकते हैं, एंजॉय किया आपने वेकेशन में कि नहीं किया एंजॉय, यहाँ पे वेकेशन से रिलेटेड है। यहाँ पे कोडर दिया गया है, कोडर, C फॉर कलेक्ट, O फॉर ऑर्गेनाइज आइडिया, D फॉर मेक ए फर्स्ट ड्राफ्ट, E फॉर एडिट योर ड्राफ्ट, एंड देन I फॉर रिवाइज योर ड्राफ्ट। अगर आप कोडर का यूज़ करते हैं तो आपका राइटिंग स्किल अच्छा हो जाएगा। और फिर यहाँ पे एक रिपोर्ट राइटिंग का स्टेप दिया हुआ है, हाउ टू राइट रिपोर्ट। देखो पैराग्राफ 1 to 5 लिखना है, बाय लिखना है, रिपोर्टेड बाय, डेट एंड सिटी लिखने के बाद सुटेबल सिचुएशन से ओपनिंग करना है, और फिर इसका वर्णन करना है, कंक्लूजन करना है। फिर यहाँ पे पेयर वर्क दिया है आपको, लाइक दैट यू सी, एंड देन वी विल गो नेक्स्ट टू Raghu. About Raghu, next story is there that we will read in next period, because it is already 41.12 minutes, right, and then it is developing about short story. So that's all for today. Go through the video once again, we will meet with the next lesson. Bye.